Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 9, The Adventures of Pinocchio of our English literature book as we sister. Students, in this chapter 9, The Adventures of Pinocchio, we have read and explained summary of 5 to 8 number stanzas which is in page number 69 in our last video. And students, today we are going to continue this chapter 9, The Adventures of Pinocchio in our today's class. And today's our topics are, our first number topic is summary of 9 to 13 number stanzas which is in page number 70, and our second number topic is about the author of this chapter 9, The Adventures of Pinocchio. Okay, so all students, please pay special attention in your class and listen to my words clearly, because today firstly we shall read and explain summary of 9 to 13 number stanzas which is in page number 70, and then we shall read about the author of this chapter 9, The Adventures of Pinocchio in our today's class. Okay, so all students, open page number 70 in your English literature book as we sister. And students, let's see remaining stanzas of the chapter 9, The Adventures of Pinocchio, and today we shall finish this chapter 9, The Adventures of Pinocchio in our today's class. तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर 9, The Adventures of Pinocchio को फिनिश कर लेंगे, पूरा कर लेंगे. ओके, समाप्त कर देंगे. Students, we have read in our last video that Geppetto teaches the Pinocchio to walk. ओके, कि Geppetto उस पपिट पिनोकियो को वॉक करना टीच करता है. ओके, उसे चलना सिखाता है. Geppetto held his hand and showed him how to put out one foot after the other. तो Geppetto उसके हैंड को हिल्ड करता है, उसके हाथ को पकड़ता है और उसे शो करता है, उसे दिखाता है कि कैसे हम पहले वन फुट को बाहर रखते, एक पैर को बाहर रखते और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट फुट को आगे बढ़ाते, उसे बाहर रखते. ओके, इट्स मीन कि हम कैसे चलते, कैसे वॉक करते हैं, ये Geppetto उस पपिट पिनोकियो को सिखाता है, उस पुतले पिनोकियो को चलना सिखाता है. क्लियर? So students, let's see next stanzas of this chapter 9, The Adventures of Pinocchio. When Pinocchio had learned to walk by himself, he ran all around the room. When means जब Pinocchio had learned, it's mean Pinocchio ने सीख लिया. Learned, it's a third form of learn. Learn means सीखना and learned, it's mean सीख लिया. To walk, it's mean चलना. By himself, it's mean स्वयं से. When Pinocchio had learned to walk by himself, it's mean जब Pinocchio ने स्वयं से चलना सीख लिया. He ran all around the room. He means where, ran means दौड़ा. All around, it's mean चारों तरफ. Okay, the room, it's mean कमरा. He ran all around the room. वह कमरे के चारों तरफ दौड़ा. Okay. When Pinocchio had learned to walk by himself, he ran all around the room. It's mean जब Pinocchio ने खुद से चलना सीख लिया, अपने आप चलना सीख लिया, तो वह कमरे में भागने लगा, वह कमरे के चारों तरफ भागने लगा. Okay. He came to the open door and with one leap he was out into the street. He means where, came means आया. Came is the second form of come. Come means आना, came means आया. To the open door, it's mean कि खुले दरवाजे के पास. Okay, he came to the open door, तो वह खुले दरवाजे के पास आया. And with one leap, और एक छलांग में he was out, वह बाहर था. Into the street. Street, it's mean गली. Okay, yes, road, सड़क. Okay, तो एक one leap में, एक छलांग में वह उस रूम के बाहर निकल गया और स्ट्रीट में चला गया. ओके, गली में चला गया. तो when Pinocchio had learned to walk by himself, he ran all around the room. He came to the open door and with one leap he was out into the street. It's mean जब Pinocchio ने अपने आप, it's mean स्वयं से चलना सीख लिया, तो वह कमरे में चारों तरफ दौड़ा और फिर वह खुले दरवाजे के पास आया और वन लीप में, एक छलांग में वह उस रूम के बाहर निकल गया, स्ट्रीट में चला गया. ओके, तो एक छलांग में वह रूम से बाहर निकलकर स्ट्रीट में चला गया, गली में चला गया. ओके, away he ran. Poor Geppetto ran after him, but he was unable to catch him, for Pinocchio ran in leaps and bounds. Away he ran. Okay, और जैसे ही वो पपेट पिनोकियो दौड़ के गया, ओके, रूम के बाहर स्ट्रीट में चला गया, रन करके, दौड़ के. पुअर जेपेटो, स्टूडेंट्स पुअर मीन्स गरीब होता है ना, बट स्टूडेंट्स हियर द मीनिंग ऑफ पुअर इज बेचारा. ओके, बेचारा जेपेटो रैन, इट्स मीन दौड़ा, आफ्टर हिम, इट्स मीन उसके पीछे. तो जैसे ही वो पपेट पिनोकियो वन लीप में, एक छलांग में रूम से बाहर निकलकर स्ट्रीट में चला गया, कमरे से बाहर निकलकर गली में चला गया, तो बेचारा जेपेटो उसके पीछे दौड़ा. ओके, बट ही वाज अनेबल टू कैच हिम. बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, अनेबल इट्स मीन अयोग्य. ओके, एबल मीन्स होता है योग होना, अनेबल मीन्स होता है योग्य ना होना. आई मीन टू से दैट अयोग्य. टू कैच हिम, इट्स मीन उसे पकड़ने के लिए. बट ही वॉज अनेबल टू कैच हिम, लेकिन वह उसे पकड़ने के योग्य नहीं था. For Pinocchio ran in leaps and bounds. Students, here the meaning of leaps and bounds, that very quickly, बहुत जल्दी से. ओके, तो स्टूडेंट्स, तो जैसे ही वो पपिट पिनोकियो वन लीप में, एक छलांग में रूम से बाहर निकलकर स्ट्रीट में चला गया, कमरे से बाहर निकलकर गली में चला गया, तो बेचारा जो जेपेटो था वो उसके पीछे भागा उसे पकड़ने के लिए. उस
बहुत तेजी से रन करते हुए, बहुत तेजी से दौड़ते हुए पिनोकियो को पकड़ने के लिए बेचारा जेपेटो उसके पीछे गया, लेकिन वह उसे पकड़ने के योग्य नहीं था। ओके, तो वह उसे नहीं पकड़ सकता था बिकॉज स्टूडेंट्स जो जेपेटो है वो बहुत ही ओल्ड है, बूढ़ा है। ओके, तो जैसे ही पपेट वन लीप में रूम के बाहर स्ट्रीट में चला गया तो बेचारा जेपेटो उस बहुत तेज दौड़ते हुए पिनोकियो को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन वह उसे पकड़ने के योग्य नहीं था। ओके, his two wooden feet as they beat on the stones of the street made as much noise as 20 people walking with wooden shoes. ओके, तो his two wooden feet, उसके दो लकड़ी के जो पैर थे ना, वो उस पपेट के, उस पुतले के जो टू वुडन फीट थे, दो लकड़ी के पैर थे, एज दे बीट, वो ऐसे बज रहे थे। ओके, ऐसे बीट कर रहे थे ऑन द स्टोन्स ऑफ द स्ट्रीट। इट्स मीन कि ऑन द स्टोन्स ऑफ द स्ट्रीट, इट्स मीन पत्थर की गली पर। ओके, तो पत्थर से बनी हुई गली में उसके जो टू वुडन फीट थे, दो लकड़ी के पैर थे, वो ऐसे बीट कर रहे थे, ऐसे बज रहे थे। मेड एज मच नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। एज 20 पीपल वॉकिंग विथ वुडन शूज। ओके, जैसे 20 पीपल वुडन शूज के साथ वॉक कर रहे हैं, जैसे 20 लोग लकड़ी के शूज के, लकड़ी के शूज के साथ, इट्स मीन कि लकड़ी से बने जूते पहने हुए वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं। ओके, तो उस पपेट के ओनली 2 वुडन फीट, सिर्फ दो लकड़ी से बने पैर इतना ज़्यादा साउंड कर रहे थे उस स्टोन से बनी स्ट्रीट में, उस पत्थर से बनी गली पे, जैसे कि 20 पीपल विथ वुडन शूज। इट्स मीन जैसे 20 लोग लकड़ी से बने हुए जूते पहनकर वॉक कर रहे। ओके, तो इतने फास्ट वो रन कर रहा था, इतनी तेज दौड़ रहा था। ओके, वॉज फन इट वॉज, वॉट मीन्स क्या फन, इट्स मीन आनंददायक या हैरान करने वाला। इट वॉज, इट्स मीन यह था। वॉट फन इट वॉज, इट्स मीन ये कितना हैरान कर देने वाला था ना, कि उसके 2 फीट वो इतने ज़्यादा बीट कर रहे थे, उसके 2 जो वुडन फीट थे, लकड़ी से बने हुए जो उसके 2 पैर थे, वो कितने ज़्यादा बीट कर रहे थे ना। जेपेटो लव्ड पिनोकियो ओ लॉट। ओके, जेपेटो लव्ड, इट्स मीन प्यार करता था। लव्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ लव, लव मीन्स प्यार करना, एंड लव्ड इट्स मीन प्यार करता था। पिनोकियो, इट्स मीन पिनोकियो को, अलॉट इट्स मीन वेरी, बहुत। ओके, जेपेटो लव्ड पिनोकियो अलॉट, इट्स मीन जेपेटो पिनोकियो से बहुत प्यार करता था। ही सोल्ड हिज कोट टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल। ओके, ही मीन्स उसने, सोल्ड मीन्स बेच दिया। सोल्ड इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ सेल, सेल मीन्स बेचना, सोल्ड मीन्स बेच दिया। हिज मीन्स अपना, कोट इट्स मीन कोट, टू सेंड इट्स मीन भेजने के लिए, पिनोकियो इट्स मीन पिनोकियो को, टू स्कूल इट्स मीन स्कूल या विद्यालय। ही सोल्ड हिज कोट टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, तो उसने पिनोकियो को स्कूल भेजने के लिए अपना कोट बेच दिया था। ओके, तो जेपेटो पिनोकियो से इतना ज़्यादा प्यार करता था ना कि उसने पिनोकियो को स्कूल भेजने के लिए अपना कोट बेच दिया था। ओके, बट ही वॉज अ नॉटी बॉय, बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, नॉटी मीन्स शरारती, बॉय मीन्स लड़का। बट ही वॉज अ नॉटी बॉय, लेकिन वह एक शरारती लड़का था। ओके, लेकिन जो पपेट था ना पिनोकियो, वो एक शरारती लड़का था, वो बहुत नॉटीनेस था। ओके, बहुत नॉटीनेस करता था, बहुत ही शरारत करता था, नॉटी बॉय था। ही लेफ्ट स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स टू ज्वाइन द सर्कस। ही मीन्स उसने लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया। ओके, लेफ्ट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ लीव, लीव मीन्स छोड़ना, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया। स्कूल मीन्स स्कूल या विद्यालय। विथ हिज फ्रेंड्स, इट्स मीन अपने दोस्तों के साथ, टू ज्वाइन द सर्कस, इट्स मीन सर्कस ज्वाइन करने के लिए, सर्कस में जाने के लिए। ओके, ही लेफ्ट स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स टू ज्वाइन द सर्कस। ओके, उसने क्या किया, उसने अपने दोस्तों के साथ सर्कस जाने के लिए विद्यालय छोड़ दिया। इट्स मीन कि वह विद्यालय से भाग गया अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने के लिए। ओके, इतना ज़्यादा नॉटी बॉय था, इतना ज़्यादा शरारती लड़का था। He faced many troubles during his journey and was always helped by a fairy called the blue fairy. He means उसने faced, it means सामना किया, faced it's a second form of face, face means सामना करना, and faced it means सामना किया। मैनी मीन्स बहुत सी, ट्रबल्स इट्स मीन डिफिकल्टीज, कठिनाइयाँ या परेशानियाँ। ड्यूरिंग इट्स मीन के दौरान, हिज मीन्स अपनी, जर्नी इट्स मीन यात्रा, एंड मीन्स और, वास मीन्स था, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हेल्प इट मीन मदद किया, सहायता की, बाय मीन्स द्वारा, ए मीन्स एक, फैरी इट्स मीन परी, कॉल्ड मीन्स कही जाने वाली, द ब्लू फैरी इट्स मीन नीली परी। He faced many troubles during his journey and was always helped by a fairy called the blue fairy. It's mean कि उसने अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और नीली परी कही जाने वाली परी के द्वारा हमेशा उसकी मदद की गई थी। ओके, इट्स मीन स्टूडेंट, जब वो पपेट पिनोकियो अपनी फ्रेंड्स के साथ सर्कस को ज्वाइन करने के लिए स्कूल से भाग निकला ना, तो उसे अपनी जर्नी के दौरान बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और
जब वो डिफ़िकल्टीज़ में था, परेशानी में था, कठिनाइयों में था, तो उसकी हेल्प किसने की थी? एक फेरी ने की थी, एक परी ने की थी। और उस फेरी को क्या कहा जाता था स्टूडेंट्स? ब्लू फेरी, नीली परी। ओके, तो स्टूडेंट्स अपनी यात्रा के दौरान उस पपेट को, उस पुतले को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और नीली परी कही जाने वाली एक परी ने हमेशा उसकी मदद की थी। क्लियर स्टूडेंट्स? वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट दिस इज दैट ब्लू फेरी हु वाज ऑलवेज हेल्प टू पिनोकियो। ओके, तो ये वही ब्लू फेरी है, नीली परी है, जिसने पिनोकियो की हेल्प की थी। ओके, जब वो प्रॉब्लम में था अपनी जर्नी के दौरान। क्लियर? अपनी यात्रा के दौरान। लेट्स सी नेक्स्ट लाइन। सून ही बिगन टू मिस जेपेटो। सून मीन्स जल्दी, ही मीन्स उसने, बिगिन मीन्स शुरू कर दिया, टू मिस इट्स मीन याद करना, जेपेटो। सून ही बिगन टू मिस जेपेटो, इट्स मीन जल्दी ही उसने जेपेटो को याद करना शुरू कर दिया। ओके, तो जब वो पपेट पिनोकियो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा था और ब्लू फेरी उसकी हेल्प कर रही थी, तो जल्दी उस पपेट पिनोकियो को जेपेटो की याद आने लगी। ओके, और जब उसे जेपेटो की याद आने लगी तो वो जेपेटो को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ओके, अपॉन सर्चिंग फॉर हिम पिनोकियो हियर दैट जेपेटो हैड बीन ईटन बाय अ हग व्हेल। ओके, और जब वो उसे ढूंढने के लिए निकला तो पिनोकियो हियर्ड इट्स मीन सुना। ओके, हियर्ड इट अ सेकंड फॉर्म ऑफ हियर मीन्स सुनना, हियर्ड मीन्स सुना, दैट मीन्स की जेपेटो हैड बीन ईटन, इट्स मीन जेपेटो को खा लिया गया बाय अ हग व्हेल। इट्स मीन लार्ज बिग। ओके, वेल इट्स अ फिश। ओके, एक फिश होती है वेल, और बाय अ हग व्हेल इट्स मीन एक बड़ी सी वेल के द्वारा। तो अपॉन सर्चिंग फॉर हिम पिनोकियो हियर दैट जेपेटो हैड बीन ईटन बाय अ हग व्हेल, इट्स मीन कि उसे ढूंढने के दौरान पिनोकियो ने सुना कि जेपेटो को एक हग व्हेल ने, एक बड़ी सी वेल ने खा लिया है। ओके, when he went to find the whale, he too was swallowed by it. Students, here the meaning of swallowed is taken into stomach through mouth and throat. It's mean mouth and throat के through. Okay, मुंह और throat के थ्रू स्टोमच में कुछ लेना। ओके, मतलब माउथ और थ्रोट के थ्रू स्टोमच में अंदर की और कुछ लेना। ओके, इसे बोलते हैं swallowed, इट्स मीन निगलना बोल सकते हैं। ओके, तो when he went to find the whale, जब he means where, went means गया, went is the second form of go means जाना, went means गया, to find इट्स मीन पता लगाने, the whale इट्स मीन whale का। when he went to find the whale, जब वह उस whale का पता लगाने गया, he too was swallowed by it, he means where, to means also, भी was means था, swallowed इट्स मीन कि taken into stomach through mouth and throat, इट्स मीन माउथ और थ्रोट के थ्रू किसी चीज़ को स्टोमच में लेना। ओके, इट्स में निगलना, तो वह भी उस हग वेल के द्वारा, उस बड़ी सी वेल के द्वारा निगल लिया गया। इट्स मीन जब वो जेपेटो को ढूंढने के लिए निकला। ओके, और जेपेटो को तब जो ढूंढ लेगा जब वो उसे वो वेल मिलेगी, तो जब वो वेल को ढूंढने के लिए गया ना, तो वो भी उस वेल का शिकार हो गया। उस वेल ने पपेट जो था ना पिनोकियो, उसे भी निगल लिया। ओके, तो फॉर्चुनेटली इट्स मीन भाग्यवश, ओके, पिनोकियो फाउंड जेपेटो लिविंग इनसाइड द वेल्स स्टोमच। तो भाग्यवश क्या होता है? ओके, तो गुड लक था जेपेटो का कि पिनोकियो फाउंड। ओके, फाउंड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइंड, फाइंड मीन्स पाना और फाउंड मीन्स पाया। पिनोकियो फाउंड जेपेटो, इट्स मीन पिनोकियो ने जेपेटो को पाया, लिविंग इट्स मीन जीवित, जिंदा, इनसाइड इट्स मीन अंदर की ओर, द वेल्स स्टोमच इट्स मीन वेल के पेट में। ओके, फॉर्चुनेटली पिनोकियो फाउंड जेपेटो लिविंग इनसाइड द वेल्स स्टोमच, इट्स मीन भाग्यवश पिनोकियो ने जेपेटो को वेल के पेट के अंदर जीवित पाया। ओके, तो ये गुड लक था पिनोकियो का, जेपेटो का, कि वो दोनों अभी लीव है, इट्स मीन जिंदा है। ओके, ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक वेल ने उन्हें सिर्फ निगला है। क्लियर? टुगेदर दे मेड अ प्लान टू कम आउट ऑफ द स्टोमच। ओके, टुगेदर मीन्स एक साथ, दे मीन्स उन्होंने, मेड मीन्स बनाया, मेड इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ मेक, मेक मीन्स बनाना, मेड मीन्स बनाया, ए मीन्स एक, प्लान मीन्स योजना, टू कम आउट इट्स मीन बाहर आने के लिए, ऑफ द स्टोमच इट्स मीन पेट के। टुगेदर दे मेड अ प्लान टू कम आउट ऑफ द स्टोमच। ओके, इट्स मीन कि उन्होंने एक साथ मिलकर एक योजना बनाई स्टोमच से बाहर आने के लिए। ओके, पेट से बाहर आने के लिए। तो उन्होंने पेट से बाहर आने के लिए एक साथ मिलकर एक योजना बनाई। दे बिगेन टिंकलिंग द वेल्स स्टोमच। स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ टिंकलिंग इज मूविंग फिंगर्स इन अ वे टू मेक समवन लव। ओके, इट्स मीन कि फिंगर्स को मूव करना, उंगलियों को घुमाना, किसी को हंसाने के लिए। ओके, गुदगुदी करना। क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्या होता है
कि दे इट्स मीन उन्होंने, बिगिन में शुरू कर दिया, टिंकलिंग इट्स मीन गुदगुदी करना, द वेल्स स्टोमच इट्स मीन वेल के पेट में। ओके, दे बिगिन टिंकलिंग द वेल्स स्टोमच। तो पपेट जो था ना पिनोकियो और जो जेपेटो था, उन्होंने उस वेल के स्टोमच में, उस वेल के पेट में टिंकलिंग करना स्टार्ट कर दिया, गुदगुदी करना शुरू कर दिया। द वेल स्नीज्ड एंड थ्रू पिनोकियो एंड जेपेटो आउट। ओके, तो द वेल स्नीज्ड, तो जो वेल था ना उसने स्नीज किया, इट्स मीन कि छीका। ओके, एंड थ्रू इट्स मीन फेंक दिया पिनोकियो एंड जेपेटो आउट, आउट मीन्स बाहर। तो वेल ने स्नीज किया, छीका और पिनोकियो और जेपेटो को बाहर फेंक दिया। क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस चैप्टर 9। On seeing Pinocchio's bravery, the blue fairy was very happy. Students, here the meaning of bravery. Bravery meaning is willing to do things which are difficult. It's mean कि वो चीज़ करने की कोशिश करना जो कठिन है, ओके, उसे बोलते हैं ब्रेवरी, बहादुरी। विलिंग टू डू थिंग्स विच आर डिफिकल्ट, इट्स मीन कि ऐसा वर्क करने की कोशिश करना, ऐसा वर्क करने की इच्छा रखना जो डिफिकल्ट है, ओके, जो कठिन है। क्लियर? ब्रेवरी मीन्स बहादुरी। ऑन सीइंग पिनोचियोज ब्रेवरी, इट्स मीन पिनोकियो की बहादुरी को देखकर द ब्लू फेरी वाज वेरी हैप्पी। द ब्लू फेरी इट्स मीन नीली परी, वाज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश। On seeing Pinocchio's bravery, the blue fairy was very happy. It's mean Pinocchio की बहादुरी को देखकर नीली परी बहुत खुश थी। She turned Pinocchio into a real flesh and blood boy. Students, here the meaning of flesh and blood. It's mean the human body. It's mean मानव शरीर. Okay. She it's mean उसने turned it's mean परिवर्तित कर दिया. Turned it's the second form of turn. Turn means परिवर्तित करना and turn it means परिवर्तित कर दिया. Pinocchio into means में, a means एक, real means वास्तविक. Okay. Flesh and blood it's mean human body, मानव शरीर. Boy means लड़का. Okay. He turned Pinocchio into a real flesh and blood boy. It's mean उसने पिनोकियो को एक वास्तव का मानव शरीर वाला लड़का बना दिया। इट्स मीन फ्लैश मीन्स होते हैं मास एंड मीन्स और ब्लड मीन्स होता है खून। ओके, तो जैसे ह्यूमन की बॉडी होती है ना, मानव का शरीर होता है जिसमें फ्लैश होता है और ब्लड होता है, इट्स मीन मास होता है और खून होता है ना। तो जो ब्लू फेरी थी वो पिनोकियो की ब्रेवरी से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। ओके, तो नीली परी पिनोकियो की बहादुरी से बहुत खुश थी, इसलिए इसने क्या किया, उस पिनोकियो को एक रियल फ्लैश एंड ब्लड बॉय में टर्न कर दिया। इट्स मीन एक वास्तव का, एक असली का लड़का बना दिया। ओके, जैसे हम ह्यूमन होते हैं ना, वैसे ही उस पपेट को बना दिया उस ब्लू फेरी ने। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से पिनोकियो बिकम अ गुड बॉय एंड नेवर मिस्ड स्कूल अगेन। फ्रॉम दैट डे इट्स मीन उस दिन से पिनोकियो बिकेम इट्स मीन बन गया, बिकेम इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ बिकम मीन्स बनना एंड बिकेम इट्स मीन बन गया, ए मीन्स से गुड मीन्स अच्छा, बॉय मीन्स लड़का, एंड नेवर, एंड मीन्स और, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, मिस्ड इट्स मीन छोड़ा। ओके, मिस्ड इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ मिस मीन्स छोड़ना, मिस्ड मीन्स छोड़ा, स्कूल मीन्स विद्यालय, अगेन मीन्स दोबारा। फ्रॉम दैट डे पिनोकियो बिकेन अ गुड बॉय एंड नेवर मिस्ड स्कूल अगेन। और उस दिन से पिनोकियो एक अच्छा लड़का बन गया और फिर उसने दोबारा कभी भी विद्यालय को नहीं छोड़ा। ओके, कभी भी वो विद्यालय से दोबारा भाग के नहीं गया। क्लियर? So students, we have read and explained summary of 9 to 30 number stanzas which is in your page number 70 of this chapter 9, the adventures of Pinocchio in our today's class. And students, I hope you must have understood summary of these stanzas and I hope you have no problem in any line, in any word in these stanzas which we have read in our today's class. Now students, we are going to read this line, abridged from the adventures of Pinocchio by Carlo Collodi. Okay, so students, ये जो चैप्टर 9 है ना, दी एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो, इट्स मीन पिनोकियो के साहसिक कार्य, ये कार्लो कोलोडी जी के द्वारा राइट डाउन किया गया। ओके, इट्स मीन द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर 9 द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो इज कार्लो कोलोडी। ये जो चैप्टर 9 है द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो, इट्स मीन पिनोकियो के साहसिक कार्य, इसके जो ऑथर है, लेखक है, वो है कार्लो कोलोडी जी। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर 9 द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो। सो लेट्स रीड अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर, इट्स मीन लेखक के बारे में। The Adventures of Pinocchio is a fairy tale written by Carlo Collodi in 1887. Okay. The Adventures of Pinocchio, it's mean Pinocchio के साहसिक कार्य, it means है, a means एक, fairy means परी, tale means कहानी, fairy tale it's mean परी की कहानी, written means लिखी गई, by means द्वारा, Carlo Collodi in the 1880s, it's mean 1880 में। The Adventures of Pinocchio is a fairy tale written by Carlo Collodi in the 1880s, it's mean कि पिनोकियो के साहसिक कार्य 1880 में कार्लो कोलोडी के द्वारा लिखी गई एक परी की कहानी है। ही वॉज एन इटालियन ऑथर, ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, एंड मीन्स एक, इटालियन इट्स मीन कि इटालियन ऑथर इट्स मीन लेखक। ओके, ही वॉज एन इटालियन ऑथर इट्स मीन कि वह एक इटालियन लेखक थे। ओके, इटालियन लेखक थे, इट्स मीन कि ये जो हमारे ऑथर है ना कार्लो कोलोडी, ये इटली से बिलोंग करते थे। ओके,
तो ही वॉज एन इटालियन ऑथर, इट्स मीन कि वह एक इटालियन लेखक थे. द स्टोरी वॉज अडेप्टेड इनटू अ फिल्म बाय डिज्नी इन 1940. ओके, तो द स्टोरी इट्स मीन कहानी, वाज मीन्स थी, अडेप्टेड इट्स मीन अपनाई गई, इनटू मीन्स में, अ फिल्म इट्स मीन एक कहानी, बाय मीन्स द्वारा, डिज्नी इन 1940. ओके, तो स्टूडेंट्स की कहानी 1940 में डिज्नी के द्वारा एक फिल्म में अपनाई गई थी. क्लियर? तो इस स्टोरी भी एक फिल्म भी बनी है. ओके, और जिसे डिज्नी ने बनाया है 1940 में, 1940 में. क्लियर? सो स्टूडेंट, वी हैव रीड अबाउट द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर 9, The Adventures of Pinocchio in our today's class, and I hope you must have understood about the author. Okay, now students, I'm going to describe your classwork and homework. So all students, listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that read 9 to 30 number stanzas which is in your page number 70 of this chapter 9, The Adventures of Pinocchio, from your English literature book as we Sasta, and try to find out the summary of these stanzas and send me a voice recording here. It's your today's classwork. And students, today's homework is that learn word meaning of the chapter 9, The Adventures of Pinocchio, from your FAD English literature notebook. It's your today's homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Read 9 to 30 number stanzas which is in your page number 70 of the chapter 9, The Adventures of Pinocchio, from your English literature book as we Sasta, and try to find out the summary of these stanzas and send me a voice recording here. Thank you.